Yes. Good morning, all, and welcome to Voice for Ability and Dreamtime Learning School. This webinar and our resource partner and our knowledge partner, Parikarma India. Welcome. Uh, Voice for Ability is a dedicated channel for rehabilitation and special education, and our privilege to join collaboration to Dreamtime uh, Learning School and Parikarma India. I am welcome to all. Meanwhile, Dr. Himanshu Das, Senior Rehab Specialist, are our guest with us. Welcome to sir. Is this webinar? Lina Aisha, founder Dreamtime uh, School, is also with us. We also welcome ma'am and Professor Malvia, Professor Delhi University and head of the Parikarma India is also our side. We also welcome Rajesh Trivedi, Dr. Rajesh Trivedi. He is just will join us, and welcome to all participant and our team Dreamtime, Voice for Ability, and other Parikarma and other supporters or this webinar. Uh, over to Sumaya Siddiqui, our coordinator, to introduce all participate our guests. Sumaya. Hey, good afternoon, everyone. It's my absolute pleasure to welcome you all to this insightful webinar. Today, we have honored to be joined by a panel of experts who have made groundbreaking contribution to the field of education, disability, and rehabilitation. First, let's we begin by introducing Miss Lina, a visionary educator and a distributor in the learning space. She moved to India from Australia to teach in Mumbai and struck by outdated approach to education. Determined to bring change, she established Kangaroo Kids and some high schools, creating a learner-centric education system grounded in research-based curriculum. Today, the institution she pioneered operated in 17 cities across India as well as internationally. And the Miss Lina's passion for children, learning and innovation continued to challenge. And now we have her with Dreamtime Learning School. Next, we have Dr. Himanshu Das, a highly respected rehabilitation professional and a member of Ek Kadam Or's board advisor. Dr. Das has held prestigious leadership positions, including director of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disability in Chennai, Dehradun, Hyderabad. His instrumental role in establishing regional centers for persons with disability across multiple states, combined with his international academic engagements, has made him a leader in disability rehabilitation for centric, administrative, and policy perspectives. We also privileged to have Dr. Rajesh Trivedi, a renowned expert in disability education and rehabilitation. He is the director of Ayush Rehabilitation and Research Center, Noida, and the president of Association for Rehabilitation Professionals and Parents with a disability strong background as a deputy manager at the Skill Council for Person with Disability. Dr. Trivedi has made significant contribution as a master trainer, curriculum developer, and educational advocate. Next, Dr. Malvia has also joined us, a respected educator and a expert in neurodiversity. She is a professor at Lady Irwin College, Delhi University, and has been secretary for IWFA, All India Women's Education Fund Association. She is also a mental health professional and an advisor on disability issues, working to make education more inclusive. Last but not least, we have Mr. Kabir Siddiqui, a media professional with over 25 years of experience in radio and television and media. He has worked with Delhi Doordarshan, All India Radio, and other organizations on disability awareness. He lead the team for Navshikar, a channel dedicated to disability issues, and work with organizations like Rehabilitation Council of India, ISRO, and Media Labs.
His documentary Spurs on deaf blindness won the We Care Film Festival Award. He continued to use media to empower people with disability and spread awareness. With such an esteemed panel, today's discussion promised to be deeply enriched and insightful. I extend my heartfelt gratitude to all our speakers for their time and expertise. Without any further delay, let's begin this exciting session. Please, Miss Leena, ma'am, continue this session and say something to our participants. So, Renu, you're involved in the field of mental health, and Dreamtime Learning is all about building mental and emotional health in children. Now, when we talk about neurodiversity, I like to talk about both ends of the spectrum. You know, children who have disabilities, but also children who are highly gifted. And what a Dreamtime online school allows is, because we have so much of integration of audio, video, interactive whiteboards, and gamified learning, it holds children's interests, especially those with these diverse sort of learning needs. The second area in which Dreamtime Learning School is really, really beneficial is a couple of places. One is for kids with social anxiety or sensory sensitivity. The online school specifically works really well. And, you know, one of the things that parents don't kind of get in today's day and age, when, our infrastructure is sort of collapsing, and our, the sort of population is exploding. Even for a short distance, it can take kids an hour and a half, 2 hours to get to school and come back. And during that time, they get a sensory overload, especially sight, sound, and smell. By the time they get to school to actually study, their brains are already really, really tired. So that's why Dreamtime Learning School really also benefits kids, is it takes away all their travel time. It does 10x the learning, including teaching kids the power of mental and emotional, being mentally and emotionally empowered. So we teach a lot about the brain and behavior to kids. And we do all of this 10x in half the amount of time a normal school would take. So that's a little bit about Dreamtime Learning. I'd love to hear from the rest of our experts. That's amazing. That's amazing. We're waiting to hear more about this. But before we go, let us ask our our other very eminent person, Dr. Himanshu Das, that what we are doing when we're talking about technology, when you're talking about incorporating that, and does it really help children with children with special needs, and others, the gifted, of course, those are also extremely special. Sir, universal design of learning is being accepted as a pedagogy which has the potential, theoretically at least, to elicit the best out of every child. Whatever the diversity in the child, NEP 2020 talks about it, National Curriculum Framework has emphasized upon it. How do you position smart digital technology-based pedagogy towards facilitating the principles of universal design of learning? Sir. Sir, you're on mute. Can't hear you. Sir, sunai nahi de raha. Namaskar, everyone. It's a proud privilege to be part of this STEAM panel. Thank you so much, Kabirji, and everyone on the stage. It's a big privilege to be talking on this very special topic of universal design and connecting it to technology. As in today's context, wherever we go across the whole world, yes, there is a movement of empowering teachers in the quality in which they teach or they interact or they implement universal design for learning. But when it comes to implementation of UDL and the three aspects of universal design, multiple modes of presentation, multiple modes of engagement, and multiple modes of expression, when you give this task across different lessons or units or content or topic to teachers across a huge population, then you get to realize that without very strong expertise in a particular content or in universal design context, people are not able to
do this analysis across different units, subjects, lessons, or topics. There comes the role of technology. Today, with artificial intelligence and technology, any teacher who is really willing to implement universal design for learning and wants a topic to be presented through multiple modes or engaging students in multiple modes or say getting expression of students from multiple modes will never have any issues or problem if he or she takes help of AI and sort of information communication technology. I got these examples through a live example during the COVID time. That time, I was the director of National Institute for Persons with Visual Disabilities, and we had to send all our students home for a very long period of time. So most of the teachers being blind themselves and all the students being visually impaired. So we were connected through technology only. And because we were forced to use information communication technology and being the only option, and most of our parents did not know how to interact with these children because parents were sort of non-special educators or most of the time not so well educated, being a government residential school. So all our supports went on through the online sort of information technology system. And this school was earlier thought to be a very common school and had no recognition in Dehradun or Uttarakhand or in CBSE across the country as any good school. But if you look at the year 2021 analysis of CBSE, this very blind school was rated at top schools of India across the country in CBSE board. So that's the power of information communication technology. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, and how would you say that here is the power of technology? And so we always have this issue of should we be online, should we be offline, or should we have a combination, or should the system work towards getting a better combination of the two together, online, offline, making it blended, whatever, I don't know. It's all about circumstances and situation and the age and the curriculum that you want to implement. But in a general context, a blended learning, open to a blended learning mode is the best mode that I can suggest. However, depending on geographical situation and context and serving persons with special need or otherwise. Today I am at Imphal taking workshop for teachers of the SCRTs. But here the topography is such that many of the time you may have to reach only through online. Especially when I talk about Northeast or for the sub-Himalayan belt or lower Himalayan belt. So children with special need or for that matter otherwise also, anyone today should be open to modes for blended learning only. And blended learning also should promote both ways. As far as we know, millions and millions of dollars are being pumped by most of the developing countries on, say, improving the ITC system and improving the AI system to give us more and more better education system. At the same time, I would prefer more and more, like millions of dollars also need to be pumped into training teachers on using ICT tools and AI, because development of the teacher is equally necessary. Otherwise, both cannot be complementary to each other. Thank you, ma'am. Thank you so much. And coming from the mouth of Dr. Himanshu Das, who has been the director of almost all the NIs, is very, it comes from the most expert of experts. Thank you so much, Dr. Das, for telling us all these things. And we must implement. What is so important is that the teachers need to be trained and teachers need to understand. I hope Dr. Rajesh Trivedi has been able to join us just now, our next expert on the panel. Ma'am, he's just within 5 minutes he's joined.
Meanwhile, we talk to Lena ma'am. Yes. Okay. So, Leena, ma'am, Leena Asher has been, already Sumaya, our coordinator, has been talking about what an expert you are. And here is somebody who is implementing what we theorists are talking about. So we hear that online schooling is in its various avatars has been implemented across the globe. And India also has few examples. But we hear about this new place. Besides your many other endeavors, you have also started an initiative which is of online learning and where you are trying to take in children with diversities, somewhere disability and diversity is the whole debate about who is disabled and who is diverse. So all the RPWD Act 2016, 21 disabilities, are they disabilities or diversities? And we have the lovely gifted people, children with giftedness. So your school, please enlighten us on the So intricacies of an online schooling process and the system. How does it work? So, Renu, you love something, because actually we're all neurodiverse, right? None of us have the same brain. Nobody's got the same brain. So, in terms of being diverse, everyone is neurodiverse. And you love this one session we do in our online school through Harry Potter. We start with Greta Thunberg, who has ADHD, Asperger's, and how she's used her disability to empower her to drive her mission of halting climate change. And so we start with that, and then we actually go into Harry Potter, where you have the wizard world and the muggle world. The muggle world is a human world, and the wizard world. And how in the wizard world you have mudblood, squibs, you have all these different types of genetic outcomes, and then comparing that to the human world, where we also have, due to one gene going here and there, our brains become really, really diverse. So we introduce neurodiversity as so normal to kids, because, if we want a world going forward with empathy, that's actually what we need kids to understand, that, we are all really, really different. What I'd like to, Dr. Himanshu Das spoke about the universal design of learning, which is what we've used as the framework, the skeleton of what we do. But, because we were not finding teachers in India who actually have gone through an understanding of the neuroscience of learning or the behavioral science of learning. A simple thing like every lesson has to start with a strong emotional hook. And, when I'm talking to teachers about that and telling them why we have a strong emotional hook, at our age, Renu, Dr. Das, we will remember where we were when we heard Indira Gandhi was assassinated. We'll remember exactly where we were. And, and to make it light for teachers, say everyone remembers their first kiss, no matter who you are. Because anything that touches the emotional center of the brain in a powerful way gets remembered. So the first thing from a universal design of learning perspective is we want the kid's brain to be hooked in a very curious way. That can happen through a very strong curious question, something that shocks the brain, something that makes the brain feel in awe. So we start with that, and then we go into the teaching of the session. And because teachers take time to embody that spirit of what we want to do, we actually have 80 people who we call curiosity and excitement architects. In universal design of learning language, they're called, instructional designers. But we use them to actually create the whole backend, including the scripting for teachers for what they want to do. Now, some people say, doesn't that take away from the creativity of the teachers? It doesn't. In fact, it allows the teachers to create the emotional connection that actually drives learning. Knowledge, being an expert in a subject doesn't drive learning. What drives learning is if you can have the kids feel that they're supported, that they're accepted, that their voices matter, and that you're emotionally engaged in their outcome is what drives learning. So, we're not looking for people to be subject matter experts. We're just looking for people who love kids and who can read, and then the design of the learning is all done at the back end.
Amazing, amazing. So, what we are saying is that ultimately the knowledge is there in the environment. Sorry, the information is all around. We get the child to construct their own knowledge the way they want to do it, involving the emotions. And that's what UDL also talks about. Sir Himanshu Das, would you like to add something to this? I think it's perfectly fine, except that I would want Leena ma'am to carry this forward with a very large population and engage all the boards, state board, the CBSE board, IB board, and ICSE board all together. I think our inputs coming in from the grassroots level of being an implementing authority in the field would serve a long way if you could touch upon all these boards, and especially I think the leaders of the educational field, the principals and the coordinators needs to take on such things. Then only I think you will see a true light, because as far as my observation goes, we all know UDL is doing well. We all know technology can support UDL to a large extent for neurodiverse kids. But unfortunately, when I visit schools and see teachers working, I feel the deficit, the willingness is there, but definitely the deficit is there at the implementation phase in terms of maybe creativity or the expertise that they need. I hope such programs would go a long way in serving our kids in different setup once we take it at different forums. Thank you, ma'am. Can I just add that, Dr. Himanshu Das, I'm giving you a challenge if you can get me through, because I have met people at the highest levels to voluntarily say, I'm here to help. Whether it's CBSE, ICSE, IGCSE, state boards. I mean, I'm here for kids. I left Australia to come to India because I believe in the power of Indian spiritual wisdom that we've always had, and that needs to come through in our learning. I'm actually board agnostic. We take the highest outcomes of every board when we're designing our sessions. So kids who go through our learning can sit any board, whether it's NIOS, it's BOSE, it's IGCSE, it's CBSE. We also provide the curriculum to schools to use in a B2B format. And anyone who's interested can get in touch with you. Anyone who's running a school, we actually it's a phygital experience there, where the learning is on the screen as well as in the workbooks and notebooks that we give kids, that we all designed in-house. Ma'am, just Yes, Mr. Siddiqui, please. yeah, may I request to all panelists just bilingual अगर करेंगे तो कुछ पेरेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स हमारे जो हैं जो प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए दोनों लैंग्वेज में अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे तो मच बेटर। हाँ, हमारी गलती है, वही एक ही भाषा में स्टार्ट कर देते हैं तो उसी में बोलना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, मल्टीलिंगुअल कंट्री है हमारी, है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग हमको इसके बारे में। हाँ। मिस्टर त्रिवेदी जो है बीच में कहीं उसमें वो बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे हमें। जी जी, इतने हम और लीना जी से और क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, और आपने कहा देयर आर डिफरेंसेस इन द वे यू कंसेप्शुअलाइज। आपका जो सिस्टम है जो कि ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर मेजरली फोकस करता है, तो उसको जब आप कॉन्सेप्शलाइज करते हैं, वो एक दूसरे जो जनरल एजुकेशन सिस्टम है जो हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है बच्चे का, वो उसमें कंप्लीटली आ जाता है? कैसे आता है वो भी अगर आप हमें बता के, और अगर और आगे एक ग्लिम्स दे पाए कि ये ड्रीम लर्निंग स्कूल कैसे चलता है। मेरा हिंदी बहुत खराब है, मैं कोशिश करती हूँ मिक्स करके बोलिए। मैं न्यूरो डाइवर्स का स्पेक्ट्रम भाषा में, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरा पूरा जिंदगी एजुकेशन हुआ। हम लोग ऑनलाइन आते हैं, टीचर लाइव होती है, बच्चे लोग स्कूल क्लासरूम में आते हैं, बहुत कोलैबोरेशन का एक्टिविटी होता है। तो एग्जांपल मैं देती हूँ कि मैं हैरी पॉटर के बात में
वो लिटरेचर यूनिट के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर यूनिट. से फॉर एग्जांपल हम लोग हैरी पॉटर में वो एक दियागन एली है जिधर उन लोग उनका ब्रूम स्टिक और स्पेशल पोशन और सब खरीदने को जाते हैं, उनका मैजिक, सब मैजिक का. फिर हम लोग बच्चे लोग को ब्रेकआउट रूम में डालते हैं और बच्चे लोग ऑनलाइन शॉपिफाई जैसा उन लोग डिजाइन करते हैं हैरी पॉटर के बारे में ही कि if Harry Potter was existing in the days of today or technology had technology in his this thing, what would that online Shopify look like? And फिर बच्चे लोग उन लोग का ब्रेकआउट रूम में साथ में कोलैबोरेशन, उन लोग का रिसोर्सेज सब क्लासरूम में रहता है, उन लोग सब करके फिर प्रेजेंट करते हैं. तो हम लोग फ्यूचर स्किल्स जब भी देखते हैं कि फ्यूचर इज अबाउट क्रिएटिंग सम न्यू वैल्यू फ्रॉम व्हाट यू लर्न. I'm going to repeat that. It's a creator economy in the future is based on building new value from the knowledge you have. तो हम लोग के पास चैट जीपीटी है, ये है, वो है, सब कुछ है, पर हम लोग उनको सब कनेक्ट करके नया वैल्यू जब भी क्रिएट करते हैं, जैसे ड्रीम टाइम लर्निंग स्कूल है, तभी कुछ वैल्यू बढ़ता है. And value, I'm not talking about only money, I'm talking about human value. Human wealth, human value in terms of contribution to humanity. तो हम लोग का सब एंड में बच्चे लोग कुछ क्रिएट करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं दूसरे बच्चे को. सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड में the last part of literature, language and literature, बच्चे, we take them through a process of writing their own book. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक जब भी ग्रेड 2 में होते हैं उन लोग फेबल लिखते हैं, जैसा एसअप फेबल है, हम लोग वो प्रोसेस थ्रू करते हैं. जब भी उन लोग ग्रेड 3 में है उन लोग फिक्शन लिखते हैं. फिक्शन कैन बी अ फेरी स्टोरी और एनी सॉर्ट ऑफ फिक्शन, फैंटेसी फिक्शन उनको बोलते हैं. फिर एक ग्रेड बढ़ता है तो रियलिस्टिक फिक्शन लिखते हैं. फिर एक ग्रेड बढ़ता है तभी हिस्टोरिकल फिक्शन लिखते हैं. So or फिर science fiction. So they get to understand all the different types of writing and fiction. But जब भी बच्चे कुछ करते हैं उसमें सीखने को मिलता है. जब भी हम लोग बोलते हैं कि fiction means this और टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है. जब भी उन लोग इमर्जन होते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस में और उन लोग खुद करते हैं, हम लोग का प्रोसेस होता है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का प्रोसेस होता है, पर प्रोसेस का आउटकम है कि बच्चे लोग को रीड करना है, राइट करना है, क्रिएट करना है, सीखना है. तो जैसे हम लोग बच्चे लोग का दुनिया में आते हैं, बच्चे लोग का, सो इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल. हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस इंडिया सिखाते हैं हिस्टोरिकली. तो गांधी जी के पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम होता था, तो उनका डंडी मार्च कैसा उनका सोशल कैंपेन होता था. तो बच्चे लोग को हिस्ट्री तो जानना है वो करने के लिए, इंग्लिश भी जानना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया भी जानना है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग किड्स सोशल मीडिया इज बैड, if we teach them, if you are consuming social media, it's bad. But if you're creating, if you're getting other people's attention, if you're changing the world through social media, it's very good. आप म्यूट पे हो. आपने कहा आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, है ना, और वहीं से सबसे पहले ये ऑनलाइन ऑडियो के थ्रू चलती थी. जब बड़े बड़े मतलब फॉर्म्स में कुछ बच्चे होते थे वो ऑडियो होता था. मैं मतलब उसी जगह से मेरे ख्याल से ये जनरेट हुआ होगा. अभी हम किसी तरीके से न्यूरो डाइवर्सिटी पे ज्यादा चले गए, पर अगर हम फिजिकल और लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे भी करते हैं हिमांशु सर, तो वो ट्रैवल चेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में, जैसे सर ने बोला नॉर्थ ईस्ट में. अब नॉर्थ ईस्ट के बच्चे वैसे ही स्कूल इतनी दूर होंगे क्योंकि वो हिली एरियाज हैं या और कहीं हैं, तो
और बहुत सी बार हमारे पास टीचर्स नहीं होते ट्रेन, वो वहां तक जा नहीं पाते हैं। और अगर जाना भी है, हमने देखा है मेट्रो से भी अगर कोई व्हील चेयर यूजर है, वो उतरता है एक छोटी सी नाली बीच में, वो वहीं अटक जाता है। तो इस प्रकार में हमें तो लगता है कि ये भी बड़ा एडवांटेज होगा अगर हम ऐसे ग्रुप्स छोटे वाले टेक्नोलॉजी के थ्रू, जब मैं अपनी क्लास में छोटे ग्रुप्स बनाने की कोशिश करती हूँ, इतना शोर मचता है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट रूम्स बनाते हैं, उसमें सारा कुछ बंद करते हैं, वो तो बहुत बढ़िया होगा। सर, हिमांशु सर, आपके पास इतनी सारा एक्सपीरियंस है, इतनी सारी आपके पास नॉलेज होएगी कि पेरेंट्स, फैमिलीज, उनको क्या इश्यूज आते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो एक्चुअली स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हमारी ट्रैवल चेन में इश्यूज होती हैं या और कोई इश्यूज होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी सारे देश में पहुंच रही है, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पर अगर पहुंच रही है तो क्या ये हम ब्लेंडिंग लर्निंग अगर करते हैं तो साथ साथ जो पेरेंट्स उसमें बैठे होते हैं वो भी हमारे असिस्टेंट टीचर्स, सो कॉल्ड असिस्टेंट टीचर्स बन सकते हैं। कुछ ऐसे मेरे चीजों में मतलब मेरे दिमाग में चीजें आ रही हैं। आप इसको क्या कहेंगे, इन सब चीजों को, हिमांशु सर? मैडम, हम लोग चाहे या ना चाहे, जाने या अनजाने में, एक्नॉलेज करे या ना करे, 99.9% learners are learning through technology today. But सवाल ये आती है, what it is that they are learning? WhatsApp University, Facebook University, and whatnot. Every child is into all these things. Every child is using all these things. Every child is learning. The problem is they are not learning the content that we want them to learn, and they are not learning the way that we want them to learn. So there's no doubt about this that India is learning through technology. वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज से, मैं तो बोलूंगा मैम 95% कंट्रीज से ज्यादा यूजर, वाईफाई के यूजर इंडिया में है, मोबाइल यूजर इंडिया में है। 95% कंट्री से ज्यादा वाईफाई के और आपकी ये इंटरनेट स्पीड इंडिया में बेटर है, और इसकी यूज भी मुझे लगता है 95% कंट्री से ज्यादा इंडियंस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल यूजेस। इफ यू सी, 2 साल की बच्चे से लेके आजकल सबकी हाथ में मोबाइल है। गरीब से गरीब आदमी भी एक टाइम का खाना नहीं खाते हैं, पर मोबाइल में यूट्यूब में जरूर 2 GB डाल के वो अपना दिन पूरा करते हैं। तो इट इज हाई टाइम कि हम इसको, जैसा लीनिया जी ने कहा है, हम इसको कैसे लर्निंग के साथ, इसको टेक्नोलॉजी को लर्निंग के साथ कैसे एक इंटरसेक्शन में लाएंगे, कैसा इंटरफेस बनाएंगे, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। मैम, पेरेंट्स लोग इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके लिए लग रहा है कि अब हाथ से सीधे निकल चुका है, मोबाइल दे दो तो अब जो सिखा रहे हैं सिखा रहे हैं। टीचर्स भी बिजी है मैम, ओनली प्रॉब्लम है टीचर भी फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिजी है, टीचर्स भी इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अपनी टीचिंग के साथ। सो आई थिंक दिस कनेक्शन को कैसे बिल्डअप करके, दैट शुड बी आवर मेजर फोकस मैम। थैंक यू। वाओ, और वैसे भी कहते हैं, हाँ सर, लीना मैम आप, I just want to add to what Dr. Das just said, because if you have this world of Facebook University and WhatsApp University कि बहुत फास्ट पेस है, बहुत मूवमेंट है, साउंड है, विजुअल है, सब सेंसरी को एक्साइट करता है, सब सेंसेस को, और फिर आप बोलेंगे बच्चे लोग को, पर अभी आप स्कूल जाओ और खाली ये किताब से पढ़ो, वो बोरिंग है, खाली रीडिंग है। जो बच्चे लोग का रीडिंग थोड़ा वीक है, वो उन लोग पीछे जाते हैं। और कंटेंट जो हम लोग सिखाते हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेबल कैसा है, कैसा एक्साइटिंग बनाना है, वो हम लोग नहीं सिखाते। हम लोग बच्चे लोग को बोलेंगे कि हम लोग डेसिमल सीखते हैं, और फिर हम लोग उन लोग को बोलेंगे कि आप लोग को मालूम है कि जब भी आप शॉपिफाई पे जाएंगे कि क्यों 599 के 599 बोलेंगे और 600 नहीं बोलेंगे, कि 599 5.99 ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे, $6 नहीं बोलेंगे, क्यों? आपका ब्रेन को कैसा पुल करता है ये वर्ल्ड, ये कंज्यूमिंग वर्ल्ड।
जब भी हम लोग वो रिलेटेबल करते हैं, वेदर इट्स डेसिमल प्लेसेस और इट्स एनीथिंग, कि हम लोग सिमेट्री सिखाते हैं बच्चे लोग को, तो बुक में सिमेट्री बहुत बोरिंग रहता है. हम लोग कैसे सिखाते हैं? 2 फेस, आइडेंटिकल फेस, पर एक एकदम सिमेट्रिकल, एक स्लाइटली लेस सिमेट्रिकल, कि ये दोनों में से आपको अट्रैक्टिव कौन लगता है, ब्यूटीफुल कौन लगता है. फिर हम लोग को बच्चे लोग को सिखाते हैं कि द ब्रेन इज वायर्ड फॉर सिमेट्री, दैट्स व्हाई होल ऑफ नेचर इज सिमेट्रिकल. तो हाउ why your brain likes symmetry. और फिर हम लोग के मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस इन द वर्ल्ड आर सिमेट्रिकल फेसेस. फिर हम लोग सिमेट्री में जाते हैं तो बच्चे लोग का ब्रेन ऑलरेडी एंगेज्ड है, ऑलरेडी एक्साइटेड है टू फाइंड आउट मोर. But if we don't make that learning exciting, relatable to the real world, तो brain सो जाता है कि ये मैं पढ़ के मैं क्यों पढ़ूं सिमेट्री, क्या है मेरे को, मेरा फर्क क्या होने वाला है मेरा लाइफ में. बिल्कुल बिल्कुल रीना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैं तो इतनी खुश हूँ आज आप दोनों यहाँ पर इतने बड़े एक्सपर्ट्स आए, इतनी लर्निंग हो रही है. और मुझे लगता है और पार्टिसिपेंट्स को भी इतना ही बढ़िया लग रहा होगा. हमें शायद लगता है कबीर जी, राजेश त्रिवेदी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं. नमस्कार राजेश त्रिवेदी जी, आप ही का इंतजार था. नमस्कार. 1 मिनट लूंगा सिर्फ. जो ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मैं आरसीआई के नवशिकर चैनल को हेड करता था, जैसे आप लोग सब जानते हैं. तो उस टाइम पे हम लोग इस पे काम कर रहे थे. ऑनलाइन जो डीएड और स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स के, पर्सन विद डिसेबिलिटी पे फिल्म्स बना रहे थे. चैनल को अपने 10 साल चलाया. वो ऑनलाइन. उसके बाद हम उसको यूट्यूब पे भी लेके आए. जब पेंडेमिक आया कोरोना वायरस का, तो उस टाइम पे हमने ऑनलाइन क्लासेस, जो कि जब हम आरसीआई छोड़ चुके थे, वॉइस फॉर एबिलिटी एस्टैब्लिश हो चुका था, तो हमने एक ऑनलाइन सेशन जो है, वेबिनार भी नहीं हो पाते थे उस टाइम पे. उस टाइम हमने स्ट्रीम यार्ड और अलग अलग उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लेके, और हमने एक्सपर्ट को लेके, डॉक्टर रेणु मालविया, हिमांशु दास, आलोक भुवन, मतलब टॉप मोस्ट जितने लोग थे उनको लेके, उनका गैप नहीं होने दिया, उनको चलने दिया. ऑनलाइन लर्निंग वहां से शुरू हो गई हम लोगों की. तो ये एक जब एक प्रॉब्लम आई थी हमारे पास पेंडेमिक की, तो उसको भी हमने फायदा उठाया. सब लोगों ने उसको पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से उसको हमने प्रमोट किया. थैंक यू. मैं ओवर टू रेणु मालविया मैम. राजेश जी नमस्कार. आप ही से हम आपका इतना काम है, हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस आपको पहले ही कर दिया था बिगनिंग में. आप लोग, आपने इतना सारा पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ उनके सपोर्ट ग्रुप्स बनवाए हैं, और बच्चों के चैलेंजेस जो हैं उसमें आपने कितना समय लगाया है. और इस कंट्री में जो इतनी डाइवर्स है, तो इसमें जो स्पेशली चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज, बच्चे जो हमारे व्हीलचेयर यूजर्स हैं, तो इन्हें क्या एजुकेशन में क्या इनके पेरेंट्स की कोई समस्या होती हैं, चैलेंजेस होते हैं कि जिससे ये बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उसकी वजह से इनका एजुकेशन जो है वो सफर करता है? क्या उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में कोई इश्यूज आते हैं? पर उसका समाधान आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, किधर को जाना चाहिए? तो चैलेंजेस बताइए हमें, क्या होते हैं? नमस्कार मैम, कबीर जी, हिमांशु सर, आकांक्षा मैम और अदर डेलीगेट्स एंड पार्टिसिपेंट्स. मैम ने बड़ा ही डाइवर्स टॉपिक बताया. और मैम, पिछले 1 साल से मैं बिल्कुल गाँव में जाके, गन्ने के खेत में जाके, आप कह लीजिए, तो चैलेंजेस को देख रहा हूँ. गाजियाबाद और मेरठ में मैं दिल्ली रैपिड रेल के साथ जुड़ा हूँ एज ए डिसेबिलिटी एक्सपर्ट, और उनका एक प्रोजेक्ट है. इसमें 1000 पीडब्ल्यूडी को आइडेंटिफाई करके बेस्ट क्वालिटी का सिस्टम देना है, और उसमें से 100 को स्किल ट्रेनिंग देना है. तो अपने चैलेंजेस बताई. बिल्कुल, सबसे मेजर चैलेंजेस क्या है? जहाँ चैलेंज है वहां तक सिस्टम, गवर्नमेंट, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप पहुंच नहीं पाते हैं. अगर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे हम जाके देखें तो अभी भी कुछ ऐसे हैं परसेंट जहां पे है कि अगर जर्म ले लिया है तो इसकी मृत्यु हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रिसोर्सेज, अवेयरनेस, सपोर्ट सर्विसेज, जितनी भी चीजें हैं वो शहर या शहर से जुड़ा हुआ जो थोड़ा मोड़ा क्षेत्र है वहां तक है.
मेजर चैलेंज है मोबिलिटी। जैसे मैं एक केस स्टडी आपको बताऊंगा। एक केस है, हमारे डेटा में आया कि विजुअल इम्पेयर्ड है। मैंने जब से कॉल किया, उसकी मम्मी को 3-4 दिन तक मैं फॉलो करता रहा, वो मेरा फोन ही पिक नहीं की। जब फोन पिक करे हमें डांट दे। फाइनली एक दिन मैं रात के 9:20 पे कॉल किया उसको, बोले कि कल मॉर्निंग में कॉल कीजिएगा। फिर कल मॉर्निंग में कॉल किया। उसकी कंडीशन ये है कि बेटा होने के चक्कर में 5 बेटियां हुई, और जब छठा बेटा हुआ तो मल्टीपल डिसेबिलिटी का है। 2016 में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब बेटियां से भी बड़ी होती गई, घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, ये बेड रिडन है। तो हमें कहा कि हम ब्लाइंड है ही है, तो इसने कहा कि हमें ट्रेन नहीं व्हील चेयर दीजिए। तो सबसे पहली बात, एक जो मेजर चैलेंज हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो मोबिलिटी का। 60 बेड हम बांटते हैं दिल्ली में, दिल्ली से आसपास के जो शहर हैं वहां पे एक आदमी को 3-3, 4-4 बार मिल जाता है, लेकिन इंटीरियर में आप जाके देखिए तो उनको पता भी नहीं है। तो पहली तो मोबिलिटी सबसे जरूरी है, जो अभी बहुत बड़ा बैरियर है। दूसरी बात, हम प्रैक्टिकल बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट थे, उसके बाद यूडीआईडी आया। यूडीआईडी को जितना इजी बनाने की कोशिश की जा रही है उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और सामान्य लोगों को अभी भी यूडीआईडी नहीं बन रहा है। जहां यूडीआईडी बन रहे हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं और कोई इसको नेगेटिव सेंस में नहीं ले, लेकिन वहां पे भी लोगों ने धंधा खोल के बैठ गए हैं। हम पहले बनवा देंगे तो इतना लेंगे, हम परसेंटेज बनवा देंगे तो हम इतना लेंगे, नहीं दोगे तो इतना परसेंटेज कम हो जाएगा। ये चैलेंजेस हमने फेस किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का 85% डिसेबिलिटी है लोकोमोटर में, 10 साल बाद उसकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जो सीवियरनेस है वो बढ़ेगी। जब यूडीआईडी बन गया तो उसका 65 हो गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर किसी को 10 साल पहले चलने में दिक्कत थी तो 10 साल बाद प्रॉब्लम और बढ़ेगी। क्यों हुआ? क्योंकि उसने वहां के जो स्टाफ थे उनको पैसे नहीं दिए। तो मैं सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट मैं जो चैलेंजेस है वो बता रहा हूं। तो जब तक यूडीआईडी नहीं मिला तब तक क्या होता है, उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी। अभी मैं एक जगह क्लास लेने जाता हूँ, वहां पे ड्वार्फिज्म कैटेगरी की एक लड़की है, ब्यूटी, नाम लेना उचित नहीं होता है प्लेटफॉर्म से। कल मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था एग्जाम के पढ़ाने के बाद। मैंने क्या ब्यूटी तुम्हें कोई चैलेंज? वो अपना सर पीट के कहती, सर चैलेंज ही चैलेंज है, हमने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा ली। अच्छा, पेंशन की अप्लाई करने जाती है तो जो ऑफिसर है वो बोलता है, 6 साल की तो तू गुड़िया है, 7 साल की लगती है, फिर कैसे पढ़ाई कर ली? हमें इग्नोर करके भगा देते हैं, हमें पेंशन नहीं बनाते क्योंकि तू तो सब कुछ ठीक ठाक है। उसकी हाइट लगभग 3 फीट की है। तो ये प्रैक्टिकल चैलेंज है। एक तो मोबिलिटी हो गया, दूसरा जो हमारा यूडीआईडी है वो नहीं बन पाता। यूडीआईडी बन गया तो पेंशन नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन को फोकस करते हैं, लेकिन सिस्टम हमारा वेल इक्विप्ड नहीं है। दिल्ली में हमने काफी कोशिश किया, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, यूपी में वन टाइम, हरियाणा में भी एक कुछ, लेकिन स्पेशल एजुकेटर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो इंक्लूजन होगा, बच्चे भाग आते हैं क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो ये सारे बैरियर्स हैं जो हम फोकस कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का। हाँ, जो पेरेंट पे करने लायक है उनके ऊपर पे करने का भी एक ऐसा केस है। आप बिलीव करेंगे, एक स्कूल है नोएडा में, वहां पे हमारी एक कलीग का बेटी, उसको ऑटिज्म सिम्टम्स है, अभी 6 साल का भी नहीं हुआ है, और पर मंथ उसे कितना चार्ज कर रहे हैं आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते। 79,000 रुपीज पर मंथ सिर्फ स्कूल फीस है। ये 79,000 तक कितने हमारे स्पेशल एजुकेटर की सैलरी नहीं होती है। 40,000 बेस फीस, 10,000 रुपया थेरेपी का, और 29,000 रुपीज है उसका असिस्टेंट का। तो जहां पे करने वाले हैं वहां इस प्रकार की, और उसके बावजूद भी कन्वेंस वगैरह एक्सेट्रा अलग है। मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज वो खर्च कर रहे हैं, थेरेपी घर पे अलग से दिलवाते हैं। इसके बावजूद भी कहा जा रहा है इसको बाहर निकालो। क्यों? लॉजिक है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट तो हमने बनाया, इंप्लीमेंट करने के लिए राजेश त्रिवेदी जैसे कंसल्टेंट को भी हायर किया गया मंत्रालय में, और कुछ दिन बाद हमें भी वहां से हटा दिया गया। तो जो चैलेंज आते हैं पेरेंट्स का, वो मीट नहीं हो पाता है। कई बार सरकार की बहुत अच्छी पहल रही है, मैंने खुद वहां पे जाके किया है अप्रोच, अच्छे भी हुए हैं। जो अच्छे हुए हैं वो 1 या 2% का ही है या उससे भी कम,
मेजर चैलेंज तो पॉलिसी लेवल पे भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रही है। अभी मैं दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स ट्रेनिंग का क्लास ले रहा था। सीबीएसई बोर्ड 1 घंटा में 20 मिनट का टाइम देता है एग्जाम में, और आईसीआईसी बोर्ड 15 मिनट। मुझे ऐसा कहा गया। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे गाइडलाइन दो, मैं लिखता हूं उनको कैसा क्यों हो रही वेरिएशन। तो आपको हर लेवल पे वेरिएशंस आ रही है। अब कहेंगे सॉल्यूशन क्या है? तो जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन किया गया है, हर लेवल के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसका टुवर्ड्स द डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग मैंडेटरी किया जाए। अभी हमने देखा, मैं तो ओपन बोलता हूं, शायद कोई नोट भी करे, आरसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया कि अगर आपके संस्था में नॉन रजिस्टर्ड आरसीआई रिहा प्रोफेशनल है या उनका एक्सपायर हो गया है तो उसका डिटेल भेजें, क्योंकि हम चाहते हैं फेयर प्रैक्टिस हो पीडब्ल्यूडी के लिए, आरसीआई रजिस्टर्ड रिहा प्रोफेशनल हो। मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी से पूछना चाहता हूं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में सारे में डॉक्टर होंगे, उनके मेंबर्स, नर्सिंग काउंसिल में नर्सेज होंगे, पीटी में पीटी होंगे, ओटी काउंसिल में ओटी होंगे, और आरसीआई में जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी है वो खुद ही हमारे रिहा प्रोफेशनल फील्ड से नहीं है। और जो वेल क्वालिफाइड हमारे रिहा प्रोफेशनल है उसको बाउंड्री से बाहर करके बैठा दिए गए। ये भी एक बहुत चैलेंज है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे कैसे लोग आपके ऊपर बैठ गए हैं, उसका ग्राउंड रियलिटी क्या होता है। तो दीज आर द चैलेंजेस है मैम। इट इज वेरी टफ, बट ऑफ कोर्स कोशिश करने से बदलाव आई है, ऐसी बात नहीं है। काफी चेंजेस भी आए हैं, हर लेवल पे आई है, पर जितना आया है वो बिल्कुल नगण्य के बराबर है। चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ती जा रही है और काफी है। राजेश जी, जो आप बात कह रहे हैं ये आप ही लोगों की वजह से कहाँ कहाँ तक पहुंचते हैं। ये देखिए हमारे सीनियर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स कि उनको कितनी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, और फिर भी हमारा इतना बड़ा देश है, कितनी अवेयरनेस की जरूरत है, कितनी टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है, कितनी बच्चों को खाली एक स्कूल तक पहुंचने के लिए पूरी कंट्री को, जेंडर की भी बात आपने लाई, बॉय गर्ल की, कि क्या हम कहाँ कहाँ हम करें, पर फिर वो ये बूंद बूंद से सागर भरता है। राजेश जी ने अपनी जिंदगी, हिमांशु जी ने पूरी अपनी लाइफ इसमें किया है। थैंक यू ये सब बातें बताने के लिए। अब ये चैलेंजेस को हमारे ऑडियंस भी, हम भी, एंड लीना अशर मैम जो कि एक पूरा ग्लोबल नॉलेज लेके यहाँ आई हैं, और जो राजेश जी आपके आने से पहले हिमांशु जी और लीना जी का इंटरेक्शन हुआ था कि इसको हम एक डिफरेंट लेवल तक, डिफरेंट सोच, इसमें सोच को बदलाव करके कैसे आगे लाएं। तो वो खाली एक ड्रॉप है, एक ड्रीम है, उसी को लेते हुए, हाँ, इन चैलेंजेस को रखते हुए, लीना मैम आप, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, क्या आप इन चैलेंजेस को, आपका जो स्कूल है वो किस प्रकार से कुछ अटेम्प्ट कर रहा है? आपके पास एक वीडियो है, क्या उसके थ्रू दिखाएंगे कि क्या ये चीज है, वो बच्चा जो कि बेड के ऊपर है वो उठ नहीं सकता, क्या आपका स्कूल उस तक पहुंच पाएगा? इसको अगर अपने वीडियो के थ्रू, क्योंकि हमारे पास 1-2 मिनट बचे हैं खाली, अगर आप अपने वीडियो के थ्रू थोड़ा सा एक हमारे ऑडियंस को ग्लिप्स देते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हिमांशु सर, आप कोई एंडिंग सेंटेंसेस कुछ कहना चाहेंगे? Ma'am, I think it has been a lovely panel. All of us have discussed on so many aspects. I hope such programs are held very frequently with more number of participants from diverse groups. And I appreciate the effort and hope all of us will come together and try to do our best in the field, because challenges in India will remain a lot always. However, achievements in India will also remain the best in the world. So let's be forward and see what best we can do. Thank you. एंड नेक्स्ट टाइम राजेश जी भी हमने पेरेंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, जैसे हिमांशु जी कह रहे हैं, हो सकता है अगली बार हम एक डाइवर्स ग्रुप को इस वेबिनार्स में लाने की कोशिश करेंगे, तो जितने, बिल्कुल। एंड आप एक पूरा, हमें एक वेबिनार ही पूरा चाहिए होगा जिसमें हम चैलेंजेस को लेके और उनके साथ साथ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको ला सके। पर अब क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है, लीना जी जल्दी से हमें अगर आप वीडियो दिखाएं।
Naman shows the video. Rajesh ji, I didn't understand everything you were saying. I picked it up in bits. मेरा हिंदी poor है, but ये मेरा give back project है. So if there are children who cannot afford the online school fees, I sponsor the children. We just have to get them a computer or an iPad or a tablet or something, and we can work that out together. If there's any interest in reaching these kids. Manaman, are you showing a video? तो ये मीरा जी कह रही हैं कि अगर ये वो रेडी हैं लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री में जाने के लिए, अगर वो कंप्यूटर तक उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, अब नेटवर्क वहाँ कैसे पहुंचेगा, वो भी पहुंच ही रहा है, जैसे हिमांशु सर ने बोला. मैं जब तक बात कर रही हूँ लीना जी, जब तक आपका वीडियो स्टार्ट होता है, जैसे हिमांशु जी ने कहा अगर मोबाइल्स पहुंच सकते हैं तो ये भी पहुंच सकता है. नमन ने लिंक शेयर किया है, आप प्ले करेंगे तो प्लीज. मीनवाइल वीडियो शेयर हो रहा है. इसी कॉन्टेक्ट में मैं आपको बात बताऊं, अभी इलेक्शन जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ उसके दौरान मुझे एक पर्सन विद डिसेबिलिटी मिला जो कैंपेनिंग में लगा था. सर्वर पॉलिसी है, उसकी पढ़ाई सिर्फ सेकंड क्लास तक होकर खत्म हो गई. वो अभी 12-13 साल का है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है. वो मुझसे बार बार मुझे कांटेक्ट कर रहा है कि भैया मुझे बात कराइए. मैं आज उसको ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहा था आप लोगों के सामने, लेकिन समय वो ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास भी रिसोर्स की कमी है. तो इस तरह के कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसा सर ने बताया कि सब तक बात नहीं पहुंच पाती है. तो अभी हम वीडियो शेयर करते हैं. Welcome to Dreamtime Learning, the first 3D online hybrid school in India. Meet our founder, Leena Usher, a path-breaking founder turned online school disruptor, TEDx speaker, happiness advocate, and author. Our curriculum is based on the IGCSE model. We provide activity-based, live interactive learning with a student-teacher ratio of just 20:1. We have a global presence across 20 countries. Experience the best of both worlds with our hybrid model, which combines online and offline activities. Step into the future of schooling with our 3D curriculum. We offer virtual lab, 3D lab, and internship opportunities. With flexible timings and 2-semester exams, we are redefining education. Join us for monthly hybrid activities that make learning both fun and engaging. Enroll with Dreamtime Learning 3D online hybrid school and embark on your child's learning journey today. Thank you so much. थैंक यू सो मच. इसमें थोड़ा सा वीडियो का इश्यूज तो आते ही हैं, पर हम उसको तो ओवरकम करेंगे. अगर मोबाइल्स कर सकते हैं, बेच ले सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं. अब क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है, राजेश जी जो आपने इतनी भावुकता के साथ एक्चुअली जो फील्ड पे आप इतना काम करते हैं और जो लिटरली चप्पल आपकी मिस जाती हैं, उसकी भी बातें करी हैं, दे हैव बीन कहीं पर वो हमारे मन सोचने में लग जाएंगे. लीना जी या वो एक लाइन में एक बात मैं कहना चाहूंगा. जी आज मॉर्निंग में आरिफ नाम का एक लड़का, लगभग वो 25 साल का है, ब्लाइंड है, बचपन से उसको पढ़ाया नहीं गया. अपने प्रोजेक्ट में उसको स्मार्ट किट तो दिए, अब वो ट्रेनिंग करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, पर उसके लिए कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है. वो ब्लाइंड है, गाजियाबाद का रहने वाला है, मोदी नगर के पास का. मैं बहुत सारे ऑप्शन सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है. हर जगह उसको डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, उसको ज्ञान कुछ नहीं है शिक्षा का. देखिए इंटेलिजेंसी और अदर आउटलुक में वो बहुत ही स्मार्ट है. तो इस प्रकार की चैलेंजेस है. मैं भी सर्च कर रहा हूँ देहरादून में कुछ पॉसिबिलिटी बने या बिलारी में बने या कई अन्य जगहों पे जो अभी तक नहीं हो रहे. जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं उसकी चैलेंजेस गजब होती है.
जिसको हम ऑफिस में एसी में बैठ के पॉलिसी बनाना इज वेरी इजी। जब हम ग्राउंड में लेके आते हैं तब पता चलता है कि वो पॉलिसी कितना है। हमारे भी हिमांशु सर हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूं और प्राउडली कि हिमांशु सर जैसा नया प्रोफेसर हमारे फील्ड में जिनके हम पोटेंशियल को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति सन्याल, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल इन बीआई फील्ड इन इंडिया, हम उनकी प्रॉपर पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है। अब आए ना ये लोग, सब लोग, हम लोग मिलके अब हम छोड़ने वाले तो हैं नहीं। हम तो इसको सभी लोग, आप लोग जिंदगी करिए, हम तो कैसे भी करेंगे, वो एक एक ड्रॉप का ओशन करते ही रहेंगे जब तक हम लोग हैं, जब तक हमारे और नए लोग प्रोफेशनल्स नहीं ग्रो करते हैं। बिल्कुल कबीर जी, क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं या अभी 5-10 मिनट्स हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ओके सो मैंने तो सबको एक एक फिर से आई एम सो thankful to Himanshu ji, Rajesh ji, Leena ji that you're right here with us all this time, and so may I start again. Everyone, give us a paragraph of what is the way forward. Possible doables, और इतने सारे doables इन लोगों ने किए हैं, हमें पता है, पर अब और क्या doables हैं नेक्स्ट वाले? हिमांशु सर। मैं एक लाइन में बोलूं? जी सर। जितने भी टीचर्स हमारे इंडिया में हैं, सारे टीचर्स ट्रेनिंग के फाउंडर, डायरेक्टर जो भी हैं, उनसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि भाई नॉन अटेंडिंग 100% बंद कर दो। तो 5 साल बाद पेरेंट्स लोग हमारे ऊपर ऐसे हावी हो जाएंगे और बंडल हमारे ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे जो नॉन अटेंडिंग प्रोग्राम करके आ रहे हैं उनको अपने प्रोग्राम का नाम नहीं पता है, कौन सा कोर्स किया, क्या सिलेबस थी, कौन सा टूल्स यूज किया, इतना तक भी पता नहीं है। लोग हमारा इन शब्दों का बुरा न माने इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो हमारे बच्चे कहते हैं सर अपने सर को किसी को दिमाग से जो थोड़ा कमजोर वाला होता है ना, कोर्स किया हूँ। तो अब समझ सकते हैं पेरेंट्स के लिए पीडब्ल्यूडी कितनी चैलेंज है, ये हम बोलने की बात है, हम सभी लोग उस अनुभव को महसूस कर चुके हैं। तो हमारे पहला तो काम है कि हमारे जो ICIT ने जिनको रिकॉग्निशन दिया, कोर्स चलाने की परमिशन दिया है, वे लोग ईमानदारी से फीस भी ले रहे हैं। तो बच्चों को कहे कि भैया पढ़ो, सीखो और काम करो। बच्चे को अब कई क्लिनिक तो ऐसे बोल दिए, मैं हमारा जन्म थोड़ा हुआ है कि विकलांग बच्चे को छुएंगे, उनके साथ काम करेंगे, ऐसे रूट वर्ड भी यूज हो रहे हैं। ये सब मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, जो पर्सनल अनुभव है। तो ये पहला तो हम वहां से शुरुआत करें जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच अनुभव भी हमारे हिमांशु सर है और लीना मैडम भी ग्राउंड काम कर रही है। तो ये एक मेरा पहला रिक्वेस्ट है जिसको हम लोग सुधार सकेंगे। तो जो बिना पढ़े पास कर जाएगा और धोखे से गवर्नमेंट जॉब तो आजकल आ ही जाते हैं, 40 साल फील्ड को कैसे सर्वे करेगा भगवान जाने, मैं तो नहीं जानता हूँ। बिल्कुल, इतने देखिए, आप देखिए इस प्लेटफॉर्म पे देखिए कि जो काम कर रहा है उसका कितना अंदर से उसको जो दिखता है, कितना दर्द होता है कि इस तरीके से भी हम कर रहे हैं। दूसरी बात जो बार बार इस प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि ऑनलाइन जब सबके पास पहुंच रहा है, आप गूगल यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के थ्रू भी तो आप कुछ सीख सकते हैं। आप जो पैसा घर ले जा रहे हैं कम या ज्यादा, पर उससे थोड़ा सा अपने आप को भी तो आगे बढ़ा सकते हैं। कल हिमांशु सर, राजेश सर की जो सीट्स है उनको कौन लेगा? आप ही, यही लोग बच्चे तो बढ़ेंगे आगे। तो उसको अगर ये बढ़ाएं तो मैं तो इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूंगी कि आपकी अगर नॉलेज में कमी है तो उसको आगे बढ़ाना हमारा एक बहुत मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसे और कुछ कौन क्या एक्सपर्ट्स कहना चाहेंगे? मैं लास्ट सब टीचर को, एजुकेटर को, पेरेंट्स को, देखिए आज का दिन क्रिएटिव इकोनॉमी है,
अटेंशन इकोनॉमी भी है, तो जो हम लोग का कंपटीशन दूसरा स्कूल नहीं है, हमारा कंपटीशन फेसबुक और सोशल मीडिया है, वो सब, तो हम लोग लर्निंग इतना एक्साइटिंग और एंगेजिंग नहीं बनाएंगे जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम हम लोग का बना रहे हैं। हाँ, तो बच्चे लोग का लर्निंग साइकिल अच्छा नहीं रहेगा। तो आप जो भी स्कूल देखो, पहले देखो कि लर्निंग एक्साइटिंग है बच्चे लोग के लिए, तो आगे है, क्योंकि कल का दिन एग्जाम पास का नहीं है, A+ एग्जाम में 100%। कल का कि मेरा माइंड बहुत क्यूरियस है और मैं सीखते रहूं, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी चेंज हो रहा है कि क्यूरियोसिटी इज नंबर 1 टू लर्निंग। एब्सोल्युटली। और जरूरी है, क्या हमारे ही जो अध्यापक हैं, जो हम टीचर्स हैं, टीचर ट्रेनर्स हैं, क्या ये हम कहीं समझ पाए कि जो बच्चा होम ट्यूशन क्या कहते हैं, होम बेस्ड लर्निंग कर रहा है, जो बेड पे है, उसका भी अब टेक्नोलॉजी हम बचा सकते हैं एज अ इंडिविजुअल टीचर। एज अ इंडिविजुअल टीचर हम किसकी वेट कर रहे हैं, और उससे हमें ही रिकग्निशन मिलना है, और हम भी आगे शायद पाए। सर, हिमांशु सर। वो राजेश जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राजेश जी एक नेशनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, कबीर साहब एक प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो खास जो मांगे हैं regarding policies or implementation of policies या even implementation of Supreme Court order, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक हम लोग नहीं मानते हैं, CBSE गाइडलाइंस रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन नहीं मानते हैं। कोई भी ये सब चीजों को लेके हमारी जो मांग होना चाहिए ना, ठीक है हमारी नॉलेज बढ़नी चाहिए, दैट इज वन एस्पेक्ट, बट पॉलिसी लेवल में चेंजेस लाने वाला हमारी आवाज होनी चाहिए, एडवोकेसी और सेल्फ एडवोकेसी और व्हाटएवर इट इज। राजेश जी ने तो जो कहा RCA मेंबर सेक्रेटरी की बात नहीं है, चेयरपर्सन के बारे में आपने नहीं बोला, चेयरपर्सन भी आपकी नहीं है, ठीक है, आज तक आपके 10% से मिले, 10% हमारे फील्ड से नहीं है, मेंबर सेक्रेटरी भी आपके फील्ड से नहीं है। आप एक मेंबर सेक्रेटरी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? आज तक कोई मेंबर सेक्रेटरी आपके फील्ड के लिए है, 1 साल के लिए सिर्फ आए थे, सिर्फ वो नहीं है, चीफ कमिश्नर भी सेक्रेटरी है, या जो भी जितने भी पोस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपात टीचर होना चाहिए सभी स्कूलों में, वो भी नहीं है। CBSE गाइडलाइंस में है स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, वो भी नहीं है। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स होनी चाहिए हर एक स्टेट में एक्टिव, वो भी नहीं है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, उसके मेंबर्स तय करिए, वो भी आपकी एक्टिव नहीं है। स्टेट की कमिश्नर्स की रिक्रूटमेंट देखिए, वो भी नहीं है। अच्छा, मैं चाहूंगा जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, वो सब मुद्दों को भी पैरेलली हमें रेगुलरली लेना होगा इन फोरम्स, वेरी बिग फोरम्स। वो सब चीजों में चेंजेस आएंगे, उसके बाद फिर साइड बाय साइड नीना मैडम जैसे लोग जो टेक्नोलॉजी और एकेडमिक्स एंड क्लिनिकल साइंसेस को आगे बढ़ाएंगे, उन दोनों का मिक्सचर बनेगा, तो we'll have a better future to come. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच कबीर सर। ये तो हमारे लिए थोड़ा सा, हम भी थोड़ा काम करेंगे इसमें, अब कोशिश करेंगे कि छोटे से मुद्दे को लेके, मतलब छोटी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे एज कम्पेयर टू द लार्जर वंस, उस पे हम और वेबिनार्स करके इन चीजों को उठाना तो शुरू करेंगे, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिमांशु सर, राजेश सर एंड लीना मैम। आपने जितने मुद्दे बताए ना, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं वादा करता हूँ सारे मुद्दे मैं पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचा दूंगा। मैं आप लोगों का सबका थैंक्स कहता हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। डॉक्टर हिमांशु दास सर हमेशा से हमें सपोर्ट करते आए हैं इन सब चीज़ों को। डॉक्टर राजेश त्रिवेदी जी, प्रोफेसर रेणु मालविया, हमारे एकेडमिक डायरेक्टर वॉइस ऑफ एबिलिटी की, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीना मैम जो फाउंडर हैं ड्रीम टाइम लर्निंग इंस्टीट्यूट की, जिन्होंने हमारे साथ कोलैब किया, हमें अपॉर्चुनिटी दी वॉइस ऑफ एबिलिटी को कि वो इस प्लेटफॉर्म को जनरेट कर सके और इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जा सके। तो हम आपका बहुत थैंक्स कहेंगे। आपके स्कूल का जो कॉन्सेप्ट देखा हमने नमन जी से, सुदीप जी से और बाकी सब RTTA से बात की, दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोफेसर मालविया एक्टिवली हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो टारगेट लेके चले थे अपना,
के लंबाई पर हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन ये कि हमें जो है इसके अंदर और अभी आना चाहिए कि इसके अंदर हमें सपोर्ट इस तरह की मिलनी चाहिए। हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, जैसे मानसूदास सर ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म हमारा वॉइस का वेब चैनल और यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हम ला सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स लीना मैम का और बाकी गेस्ट का, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म को अपॉर्चुनिटी दी। आप सभी का थैंक्स। और अभी अगला वेबिनार कुछ देर बाद फिर हम लेके आ रहे हैं इसी के साथ में, और फिर लाइव और लाइव भी आप जरूर देखेंगे। और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, इतने पेशेंस कर उन्होंने इतने अपने टाइम निकाल कर आज के दिन है। और वैसे भी आप सबको हैप्पी शिवरात्रि कहूँगा, आप सबको के लिए मंगलमय हो। उस दिन आके प्रोग्राम में मिलना, जो हमारा टारगेट था, जो उसके लगभग हम पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमें और सपोर्ट करने की जरूरत है। तो थैंक यू ऑल, आपका बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वेबिनार में। आप लोग देखते रहिए वॉइस प्रोबेबिलिटी इस तरह के इनिशिएटिव लेके आता रहा है। आप लोग सपोर्ट करें, सभी लोग से रिक्वेस्ट। डॉक्टर कुमार जी, थैंक यू सो मच। क्यूमुलेशन में यही हम रहा है कि इसको हमें एक चीज में नहीं छोड़ना पड़ेगा। बूंद बूंद से सागर भरता है, और हम इस बात को खत्म ही नहीं करेंगे। बहुत देर बूंद बूंद दी गई है, फिर भी सागर नहीं बन पा रहा है, और हम ही नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज हम यही प्रण लेते हैं कि अपने हर तरीके से जिस मुद्दे को हम करते हैं, और जैसे हिमांशुदास ने, राजेश जी ने कहा, रीना जी ने उसको एग्री किया, इसको हमको लार्जर प्लेटफॉर्म्स तक लेके जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। Thank you everyone being here. Learning experience for everyone. Definitely it was for me. And for you, Parikrama and Dream Learning Foundation. Bye. We'll